एंगदांग आहोम समुदाय का शाही तलवार जो आहोम योद्धाओं के गौरव और उनकी वीरता का प्रतीक है। अब असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री बिस्वजित दोयमारी जी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ শক্তি আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত ফুকনদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। आपसे निवेदन है कि कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। নমস্কাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন আজি এই ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহাসিক খনিকৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড় বিধানসভাৰ চৌহদ আৰু বিধানসভাৰ আৱাসৰ শিলান্যাস ডিব্ৰুগড় খনিকৰস্থ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ চাবুৱা মুলুক গাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰস্থ বহুমুখী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত মূল ষ্টেডিয়ামৰ ৫,০০০ৰ পৰা ৩৫,০০০লৈ বৃদ্ধিৰ আধাৰশিলা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ আঁচনিৰ অধীনত অসমত জলাশয়সমূহৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্জীৱিতকৰণ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল এমপিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সদাশয় ব্যক্তিসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ জয় জয়তে শুভক্ষণত আপোনাক সদৌতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ হৈ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু অসমৰ কৰ্মোদ্যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ পুষ্প আদৰণি জনাইছোঁ। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। প্ৰায় 186 বছৰীয়া পুৰণি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰখনত আজি অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। এয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত অসমৰ কৰ্মোদ্যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত আৰু আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰাজধানী গঢ়াৰ প্ৰথম খোজ বিধানসভা চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃতি শিক্ষাৰ ঐতিহাসিকপূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ 1873 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আজি মঞ্চৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড়ৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যি ঐতিহাসিকখন তাক সাক্ষী হৈ ৰোৱাৰ বাবে আজি এই সভাৰ উপস্থিত হোৱা অগণন ডিব্ৰুগড়বাসী মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই আদৰণি জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি বন্দে। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আৰু অসমৰ গৌৰৱৰ দিন, বিশেষকৈ আপাৰ আছাম উজনি অসমৰ সকলৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন। আমাৰ অসম বিধানসভা আৰু বিধায়ক আৱাস ইয়াৰ দ্বিতীয় যি নতুন ৰাজধানী হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আমাৰ মুখ্য অতিথিসকলৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, জগেন মোহন ডাঙৰীয়া, নন্দিতা গাৰ্লছা ডাঙৰীয়ানী, কৃষ্ণেন্দ্ৰ পল ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ শ্ৰী নুমল মুমিন ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ এমপি শ্ৰী ৰামেশ্বৰ থেলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ লোকসভাৰ এমপি শ্ৰী প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ বিধায়ক বন্ধুসকল, আমাৰ মেয়ৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে স্মৰণীয়, যে অসমৰ দ্বিতীয়টো ৰাজধানী হিচাপে আজি ডিব্ৰুগড় হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আজি ইয়াৰে অসমৰ দ্বিতীয় বিধানসভা ডিব্ৰুগড়ত মানে স্থাপিত কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আজি শিলান্যাস কৰিবলৈ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, এই ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়টো লৈ ফালে তেখেতে যি ব্যৱস্থা কৰিলে, যিটোৰ দ্বাৰা আপাৰ আছামৰ সকলো ৰাইজৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ ৰাজধানী হোৱা সূত্ৰে অহা যোৱা কৰাত দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজত যিবোৰ কষ্ট হৈ আছিলে সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰা ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট বা তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, ধেমাজিলৈকে সহজভাৱে ডিব্ৰুগড়ত আহি ফালে চৰকাৰী কাম কাজবিলাক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু অসম বিধানসভা ইয়াতে হোৱাৰ পিছত আমাৰ লোকতান্ত্ৰিক যি পদ্ধতি, গণতান্ত্ৰিক যি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে ৰাইজে অৱগত হ'ব। এটা বিধানসভাই এটা ৰাজ্যক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে মূল হয়। তাতে চৰকাৰে আহি ফালে বিভিন্ন সিদ্ধান্তবিলাক আলোচনা কৰি অনুমোদন লৈ ফালে কাম কৰে আৰু বিধানসভাই সেইবোৰ কামক সদায় দৃষ্টি ৰাখে, নিগৰানী ৰাখে, এইটো মনিটৰিং কৰা হয়, ভিজিলেন্স কৰা হয়, যাতে সঠিকভাৱে ৰাইজৰ কামটো হয়। চৰকাৰ এখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ
মুখ্য ভূমিকা থাকে বিধানসভা কমিটিবোৰে চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাকক চৰকাৰক মানে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ক'ত কি ধৰণৰ কামবিলাক ৰূপায়ণ হৈ আছে ৰূপায়ণ হৈ থকা নাই আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ জনগণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আঁচনি লৈছে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সাধাৰণ দুখীয়া পৰিয়াললৈকে দৈনন্দিন জীৱনত যাহাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সকাহ পাই আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিবিলাক লৈ আছে এতিয়া সেই আঁচনিবিলাক সঠিকভাৱে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে উপকাৰ হৈছে হোৱা নাই পাইছে পোৱা নাই এইবিলাক চোৱা চিতা কৰাটো বিধানসভাৰ দায়িত্ব গতিকে সেয়েহে ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিধানসভাৰ যেটো আমাৰ দ্বিতীয় বিধানসভা হ'ব ইয়াৰ পৰা আপাৰ আসামৰ বিভিন্ন কাম কাজবিলাকক সদায় দৃষ্টি ৰাখিব পাৰিব আৰু চৰকাৰক সদায় বিভিন্ন ইয়াৰ ষ্টেটাছ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিব বুলি মই आशा रखो दीघलिया वक्तव्य राखिब खोजा नहीं आज मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारे गृह मंत्री जी को कि असम की जो द्वितीय हमारी राजधानी है कैपिटल है यहाँ जो नया विधानसभा जो बिल्डिंग है हॉल है उसको शिलान्यास करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है ये हमारे लिए कृपा है और हमारे लिए आशीर्वाद भी है आज मोदी जी अमित शाह जी और हमारे हिमंत बिश्व शर्मा जी जिस तरह से काम कर रहा है मुझे महाभारत का याद आता है महाभारत के समय में जैसे श्री कृष्ण जी और बाकी पांडव के वीरों ने जिस तरह से सारे भारत के देशों के भलाई के लिए लोगों के लिए न्याय देने के लिए कष्ट करता है काम करता है दिन रात महाभारत अगर हम पढ़ते हैं भागवत गीता पढ़ते हैं तो हम कभी कभी थक जाता है किस तरह काम करता है दिन रात हर समय इसी तरह मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आज हेमंत बिश्व शर्मा जी सर्बानंद सोनोवाल जी बाकी सारे मंत्रिसभा कर रहा है और आज भी यहाँ हमारे राज्यों के लोगों के लिए यहाँ आके हमको अनुप्रेरणा दे रहा है तो इसके लिए धन्यवाद और ये कहकर मैं मेरा शब्द यही मैं समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद महोदय एटिया मैं भारत सरकार बंदर नौ परिवहन और जलपथ विभाग माननीय मंत्री श्रीजुत सर्बानंद सोनोवाल देवक तेखेतर बक्तव्य आगबढ़ाबले अनुरोध जनाइछु नमस्कार भारत माता की সকলে সহযোগ কৰিব দেই भारत माता की আজি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বাবে এটি ঐতিহাসিক দিন কাৰণ আজি দিনটোত 180 বছৰীয়া এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰে অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে নিজৰ পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটি উল্লেখযোগ্য পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজি এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোত আমাৰ মাজত আহি আমাক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ভাৰত চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ আৰু শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া
অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন মোহন, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিমল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা, নিন্দুচা গালুচা আৰু সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া, বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডক্টৰ সৈকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতি দুলাল বৰা ডাঙৰীয়া, জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী পুষ্পাঞ্জলি সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানী, তিনিচুকীয়া জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি কুশকান্ত বৰা ডাঙৰীয়া, অসম গণ পৰিষদ দলৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি আদিত্য গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ উপসভাপতি পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি দিনটো মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হোৱা উচিত। ময়ো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে বিশেষভাৱে গৌৰৱ উপলব্ধি কৰিছোঁ, কাৰণ ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত ইয়াৰ আৱশ্যকীয় যিখিনি আন্তঃগাঁথনি ইয়াক আধুনিক ৰূপত সজাই তোলাৰ নিমিত্তে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আজি এই অনুষ্ঠান সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আজি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম শুভাৰম্ভ হ'ব আৰু এই শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি আজি উপস্থিত হৈছে। मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सांसद होने के नाते हमारे परम आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को हृदय से स्वागत करता हूं। और आपने असम में शांति लाने के लिए, असम के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी कदम उठाए हैं पिछले दिनों में, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि आज मैं खुद ये बात महसूस करता हूं, आपने गृहमंत्री होने के नाते सारे देश में जिस हिसाब से अपने काम की और जिसके वजह से आज देश में शांति संभव हुई, और मोदी जी के मार्गदर्शन से आपने खास करके उत्तर पूर्व राज्यों में शांति लाने के लिए जो भी अलग अलग संगठनों का साथ समझौता की, इसके वजह से आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में असम को विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए हम काबिल हुए हैं। और खास करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो कदम उन्होंने उठाए हैं, आज इसके वजह से देश के अंदर असम ऐसा एक प्रदेश बने जिसे कहा गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट ऑफ द कंट्री। मैं आज इस अवसर पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते, मैं इतना ही कहूंगा कि असम और उत्तर पूर्व इन राज्यों को कांग्रेस की शासनकाल में जिस हिसाब से उन्होंने हमें विशेष रूप से उन्होंने नाइंसाफी की थी,
दुर्नीति भ्रष्टाचार के जरिए हमारे शक्ति संपदा और संभावनाओं से भरे इस प्राण को जिस हिसाब से उन्होंने अन्याय की, इसके वजह से हमको बहुत साल तक पीछे रहना पड़ा। लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व ने उनके विशेष ध्यान से, विशेष आदर से, स्नेह से, मदद से और निरंतर कोशिश के वजह से आज जिस हिसाब से असम हो या उत्तर पूर्व राज्य हो, हर प्रदेश देश के अंदर तरक्की करने लगा है, विकास के रास्ते पर आज आत्मविश्वास से चलने लगा है। तो इसलिए इस सारे माहौल के लिए, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को असम की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी आपने कदम उठाई है, ये कभी असम के लोग, हमारे उत्तर पूर्व भारत के लोग भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। और इसी की आधारित अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम आज 21वीं सदी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अगली दिनों के लिए जो लक्ष्य दी है अमृत काल की यात्रा में, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और भारत को दुनिया का सबसे बड़े मजबूत विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करेंगे। आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज ये हुबक्षणत परम श्रদ্ধা ৰাইজ, मैं এই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছো, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আন্তৰিকতাৰে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা দিনবিলাকত আমাক সহায় কৰিছে, বড়ো চুক্তি হওক, আলফা চুক্তি হওক, কাৰ্বি চুক্তি হওক, আদিবাসী চুক্তি হওক, এই চুক্তিবিলাক স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত যেনেধৰণে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে, তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি অসম শক্তিশালী হৈছে আৰু অসম চৰকাৰেও নিৰন্তৰভাৱে এই ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। মই আশা ৰাখিম যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বাবে যিখিনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ নিমিত্তে, গঢ়ি তোলাৰ নিমিত্তে অসম চৰকাৰে আজি এই শুভক্ষণত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতেৰে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। আগন্তুক দিনত এই প্ৰকল্পৰ কাম যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে ইয়াক যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে মই ৰাইজৰ বিশেষভাৱে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছো। আৰু আজি এই শুভক্ষণত মই ভাবো যে আমি আজি অসম, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় এ ফৰ আসাম, এই যিটো বিশেষণ, এই লক্ষ্য, এই পৰিচয় যাতে আগন্তুক দিনত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অটুট ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 3,40,00,000 লোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে আজি মই ভাবোঁ যে সেই মানসিকতাৰে আমি নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ যাত্ৰা আগুৱাই নিম। আৰু আজি এই শুভক্ষণত মই বিশেষভাৱে এটা কথা কওঁ, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, কংগ্ৰেছে 55 বছৰ কাল শাসন চলালে, তেখেতসকলে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চোৱাৰ বাবে এই শক্তিশালী সম্ভাৱনাৰে পৰিপুষ্ট অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ভূত পিছ পৰি থাকিব লগা হ'ল। দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু অন্যায় অবিচাৰৰ যোগেদি সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক কংগ্ৰেছে ভাবিব নোৱাৰাকৈ প্ৰতাৰণা কৰিলে। গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত যাতে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছৰ দৰে শক্তি যাতে অসমৰ বুকুত স্থান নাপায়, তাৰ বাবে ৰাইজ আপোনালোক সকলোৱে জাগ্ৰত প্ৰহৰী হৈ থাকিব লাগিব। আৰু বিজেপি থকালৈকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সদায় ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শক্তিশালী হৈ থাকক, বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী হৈ থাকিব, এই কথা নিশ্চিত। গতিকে আজি এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ সমবেত সমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে বন্দে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। খবৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ? এইফালে খবৰ কেনেকুৱা?
পিছফালে খবৰ কেনেকুৱা এইফালে খবৰ কেনেকুৱা সব ভাল কিমান ভাল বহুত ভাল তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল সন্মানীয় বিধায়কসকল সুধীৰবৃন্দ আৰু আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানত সমবেত মোৰ আই মাতৃসকল দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে আৰু উজনি অসমৰ বাবে এটা অত্যন্ত পবিত্ৰ দিন আমি যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ সেই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত উজনি অসমৰ ৰাইজে আমাক সদায়ে আটাইতকৈ বেছি সমৰ্থন দি আহিছে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আটাইকেইটা সিট আমি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ তিনিচুকীয়া জিলাত আমি আটাইবোৰ সিট জিকিছিলোঁ শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি সকলোৱে বিজেপি চৰকাৰ গঠনত দুইবাৰেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমৰ্থন জনাইছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে উজনি অসমত অকল ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰাই নহয় অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰাও আমি আগবঢ়াই লৈ যাম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক ধৰা খদিয়াত দলং দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক বগীবিলত দলং দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেইদিনমান আগতে আমাৰ নামৰূপত ইউৰিয়া এমোনিয়া 12,000 কোটি টকাৰে 10 লাখ মেট্ৰিক টনৰ ইউৰিয়া নিৰ্মাণৰ কাৰখানা মুকলি হ'ল আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত পবিত্ৰ দিন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ ৭৭ বছৰ হৈ গ'ল কোনেও ভাবিব পৰা নাছিলে যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অসমৰ ৰাজধানী হ'ব পাৰে কোনেও ভাবিব পৰা নাছিলে যে অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় চৌহদ এটাও নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে আজি অকল ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে নহয় উজনি অসমৰ বাবে আমাৰ অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই খন্তেক পিছতে অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো চৌহদৰ কাম 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাই লাগা ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয় ৰাজধানী হ'ব আপোনালোকে ভাল পাইছে নে নাই পোৱা যদি সকলোৱে আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ডিব্ৰুগড়ত আজি কেৱল মাত্ৰ অসম বিধানসভাই নহয় ইয়াৰ লগত বিধানসভাৰ সন্মুখত খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম
সম্পূৰ্ণ হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 35,000 দৰ্শকে একেলগে বহিব পৰা আজি আমি ইয়াতে ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণ কৰিম। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 25,000 মানুহ বহিব পাৰে আৰু আমাৰ খনিকৰ ষ্টেডিয়ামত 35,000 মানুহে একেলগে বহি ইয়াতে খেল চাব পাৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নিজা গাঁও মুলুক গাঁও বিন্দাকাটা, তাৰ ৰাইজে আমাক 150 বিঘা মাটি দিছে। আমি তাতে ডেৰাডুনত যেনেকে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ৱাইল্ড লাইফ আছে, আমি সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰ বন্যপ্ৰাণীৰ গৱেষণা সংৰক্ষণ এই গোটেইবিলাক সামৰি 300 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি ইনষ্টিটিউট অফ ৱাইল্ড লাইফ নিৰ্মাণ কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়া বানপানী আহে আমাক সকলোকে বিপদত পেলায়। আমি ৰিলিফ কেম্পত যাব লাগে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে আমাৰ মানৱ সম্পদ বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতি কৰে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰৰ লগত এটা অসমৰ বানপানীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। তেখেতসকলে আমাক কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত থকা ৱেটলেণ্ড বিলসমূহক যদি আমি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ, বানপানীৰ সময়ত এই বিলবিলাক প্ৰাকৃতিক জলাশয় হিচাপে পানী সংৰক্ষণ কৰিব, মাছ কাছ জীৱ জন্তু আৰু প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা হ'ব। আজি আমি এই ডিব্ৰুগড়ৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰাই এনেকুৱা 15টা ৱেটলেণ্ড সঞ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে 700 কোটি টকাৰে আমি এটা নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিম আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ধন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আমাক প্ৰদান কৰিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা সময়ত আমাৰ পৰিচয় আছিল আন্দোলন, ধৰ্ণা, ধৰ্মঘট, বন্দুক, গুলী আৰু আমাৰ অসমখনৰ অশান্তি অন্ধকাৰৰ কলীয়া ডাৱৰ। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে ৰাস্তা ঘাট, দলং, মেডিকেল কলেজ আদি নিৰ্মাণ হ'ল। কংগ্ৰেছে অসমত 60 বছৰ শাসন কৰিছিলে। ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ আছিলে, কিন্তু আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গোলাঘাটত মেডিকেল কলেজ, যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ, শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজ, চৰাইদেউত মেডিকেল কলেজ, তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজ। উজনি অসমত এই ব্যাপক পৰিৱৰ্তন কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও চিন্তাও কৰিব পৰা নাছিল। কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে? ধুতি, লুঙি, সূতা, কম্বল আৰু আঁঠুৱা। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কি দিছে? ধৰা শদিয়াত দলং। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কি দিছে? বগীবিলত দলং। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ চৌহদ, চৰাইদেউত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু আমাৰ দৰিদ্ৰ দুখীয়া সমাজৰ বাবে উন্নতিৰ এক নতুন জয়গান। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, কংগ্ৰেছে আমাক 60 বছৰ শাসন কৰিছিলে, কিন্তু
আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ পট্টা এখন দিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। আজি বিজেপি দলে অহা মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা মাটিৰ পট্টাৰ ফৰ্ম বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব, যাতে আমাৰ বাগানৰ সমাজখনে মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আমাক কি দিছিলে? ধুতি দিছিলে, কম্বল দিছিলে। বিজেপি চৰকাৰে আমাক কি দিছে? 1.5 লাখ 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 1 টকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এটা সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমাক অহা যোৱা কৰিবলৈ 8 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। মোদী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নেশ্যনেল হাইৱে দিলে। কেইটামান দিন আগতে তেখেতে কলিয়াবৰলৈ আহি কাজিৰঙাৰ ওপৰত 34 কিলোমিটাৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ ফলত লাভ কি হ'ব? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা সময় 1 ঘণ্টা কমি যাব। কাজিৰঙাৰ মাজেদি নহয়, আমি কাজিৰঙাৰ ওপৰেদি যাম। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, এসময়ত নেশ্যনেল হাইৱেত অসমত ট্ৰাক চলিব নোৱাৰিছিল, গাড়ী চলিব নোৱাৰিছিল। ভগৱানে কৰিলে অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মৰাণলৈকে আহিব। গাড়ীয়েদি নহয়, প্লেনেদি আহি ৰাস্তাত তেওঁ অৱতৰণ কৰিব। মৰাণৰ ৰাস্তাত সেইদিনাখন ৰাফেল নামিব, সুখয় নামিব, বিমান বাহিনীৰ বিমান নামিব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে ৰাস্তাৰ ওপৰত প্লেন নমা আমি অসম এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ম। কোনে কল্পনা কৰিছিল যে মৰাণৰ ৰাস্তাত য'ত নেকি ট্ৰাক চলিব নোৱাৰে, তাত প্লেন নামিব, তাত যুদ্ধ জাহাজ নামিব। আজি আমি কোনে কল্পনা কৰিব পাৰিছিলো যে আমাৰ নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত টানেল হ'ব, টানেলেদি ৰেলো যাব পাৰিব, টানেলেদি গাড়ীও যাব পাৰিব। আমি কোনো অসমীয়াই সপোন দেখা নাছিলো যে ইমানবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যত কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব। এই কাম কোনে কৰিলে? এই কাম আমাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৰিলে। সেয়ে মই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে আমি ডিব্ৰুগড়ত আছো, কিন্তু দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে। আপোনালোকে সকলোৱে দীঘলীয়া এটা হাত চাপৰিৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকলোৱে অভিনন্দন জনাওক। কাৰণ এয়া আমাৰ জাতিৰ বাবে গৌৰৱ, এয়া আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ। আৰু মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো, তৃতীয়বাৰৰ বাবে আপোনালোকে অসমত বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্মাণ কৰক। দেশৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখন আটাইতকৈ অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ হ'ব। সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিবনে নিদিব? পুৰা ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, নহ'লে দিল্লীত নুশুনিব। বিজেপিৰ চৰকাৰ আনিবনে নানিব? আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব, অমিত শ্বাহজীয়ে শুনাকৈ, आप लोग बीजेपी को वोट दे के सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पक्का? এইফালে কত पक्का? বিজেপি চৰকাৰ হ'ব, 100% হ'ব। এবাৰ মই নোকোৱাকৈ কওক, বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে ভোট দিবনে নিদিয়ে? আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি কওক। বঢ়িয়া। আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে মোক
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰমাত্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ দিছিলে আৰু মই ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে বিধানসভা লৈ আহি আমাৰ ৰাজ্যৰ ইতিহাসত এটা মাইলৰ খুঁটা স্থাপন কৰাৰ কামত নিজক জড়িত কৰিব পাৰিলো। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে, ভগৱানৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। धन्यवाद महोदय। आपके सशक्त नेतृत्व और अथक प्रयासों के कारण ही आज असम राज्य निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। देवियों सज्जनों, आज हमारे लिए एक अपार सौभाग्य का दिन है कि देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी डिब्रूगढ़ में स्वयं उपस्थित होकर कई परियोजनाओं एवं प्रकल्पों का शुभारंभ करेंगे। आज डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा परिसर तथा विधायक आवास के निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। मैं माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें। असम आज भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में से एक। पिछले कुछ वर्षों में असम की डबल इंजन सरकार ने विकास की ऐसी गति पकड़ी है जो हर क्षेत्र में दिखाई देती है। सड़कों में, पुलों में, पर्यटन स्थलों में और आधुनिक अवसंरचना में। ये विकास सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, ये भविष्य की नींव रख रहा है। इसी विकास यात्रा में आज एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है डिब्रूगढ़। ब्रिटिश काल में डिब्रूगढ़ चाय उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बना। यहीं से असम की चाय दुनिया तक पहुंची। समय के साथ डिब्रूगढ़ केवल एक व्यापारिक शहर नहीं रहा, ये शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना का भी प्रमुख केंद्र बना। 26 जनवरी 2025 को असम सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया। और इसी क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो रही है। डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा भवन का निर्माण। नया विधानसभा परिसर 284 करोड़ के बजट से डिब्रूगढ़ बाईपास रोड पर लगभग 57 बीघा भूमि पर निर्मित किया जाएगा। मुख्य विधानसभा भवन में 150 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही आधुनिक कार्यालय, लाउंज और सहायक प्रशासनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परिसर में 126 स्वतंत्र इकाइयों वाला विधायक छात्रावास भी निर्मित किया जाएगा। मीडिया और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 सीटों वाला मीडिया लाउंज और 50 सीटों का रेस्टोरेंट भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 800 सीटों वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम और 100 सीटों वाला एक सम्मेलन कक्ष भी विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ के विकास के साथ पूरा अपर असम विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी जाएगी। ये दूरदर्शी सोच भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व को साकार करती है, जहां संतुलित विकास हर क्षेत्र तक पहुंचे। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे डिब्रूगढ़ में बहुविभागीय खेल परिसर के प्रथम चरण का शुभ उद्घाटन एवं द्वितीय चरण में मुख्य स्टेडियम में बैठने की क्षमता 5,000 से 35,000 तक के विस्तारण का शिलान्यास आभासी रूप से करने की कृपा करें। खेल सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि असम की आत्मा का हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत, अनुशासन और जीत की कहानी बसती है।
और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। खनखर स्टेडियम। डिब्रूगढ़ में स्थित 106 बीघा में फैला ये मेगा प्रोजेक्ट असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक आधुनिक बहुविषय खेल केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। ये विश्व स्तरीय खेल परिसर इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल, ट्रैक एंड फील्ड और फुटबॉल शामिल है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, अनुभवी कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण विशेषज्ञ की सुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार की प्रगतिशील व निर्णायक कदमों के कारण यह परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। अपने प्रथम चरण में यह परियोजना लगभग 238 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है, जिसके अंतर्गत स्टेडियम में 5000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और द्वितीय चरण में इसे बढ़ाकर 35,000 दर्शकों की क्षमता तक विकसित किया जाएगा। साथ ही परिसर का समग्र विकास तथा कई आधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। आज इस ऐतिहासिक योजना के प्रथम चरण का भव्य उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है और साथ ही द्वितीय चरण का शिलान्यास भी किया जा रहा है। खनखर स्टेडियम, असम के खेल भविष्य की नई पहचान। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास आभासी रूप से करें। असम के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बाघ अभयारण्य राज्य को देश में वन्यजीव संरक्षण की अग्रणी भूमिका प्रदान करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लेकर विस्तृत वन क्षेत्रों तक असम भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल है। गैंडे, हाथी, बाघ, पक्षी, हर एक प्रजाति पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतनी प्राकृतिक संपदा के साथ एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी आती है संरक्षण की, संरक्षित रखने की और भविष्य के लिए योजना बनाने की। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। भारत सरकार और असम सरकार पर्यावरण संरक्षण को कोई विकल्प नहीं बल्कि शासन की एक जिम्मेदारी मानती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम। वन्य जीवों का स्वास्थ्य सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहता। इसी दृष्टिकोण के साथ असम सरकार एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा रही है। অসমবাসীয়ে কেৱল জীৱন্ত গড়ক জীয়াই ৰখা, চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, সেই কথাকহে অসমবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে। पूर्वोत्तर भारत तथा असम का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च डिब्रूगढ़ के दिनजान में स्थापित किया जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने 292 करोड़ रुपए की लागत से 117 बीघा 6 लेसा क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना को मंजूरी दी है। ये संस्थान उन्नत वन्यजीव रोग निगरानी, अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से असम की क्षमता जूनोटिक रोगों के प्रबंधन, फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने और प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करने में और अधिक सुदृढ़ होगी। डिब्रूगढ़ में प्रस्तावित ये संस्थान असम की प्राकृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगा। ये परियोजना पारिस्थितिक चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन और दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहे हैं। धन्यवाद महोदय।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वे असम के आर्द्र भूमि पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन परियोजना का शुभारंभ आभासी रूप से करने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र और बराक सिर्फ नदियां नहीं, असम की जीवन रेखा है। यही जल खेतों को सींचता है, यही भूमि को जीवन देता है और यही जीवन को आगे बढ़ाता है। जल, माटी, जीवन, ये केवल एक नारा नहीं, असम की पहचान है। लेकिन जब यही जल अपनी सीमाओं से बाहर आता है, असम के बड़े हिस्से बाढ़ की चपेट में आते हैं। बारिश का सारा पानी सीधे नालों और नदियों में पहुंचता है। ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां अपने किनारों से बाहर आ जाती हैं। लेकिन इसी नदी के पास इसका समाधान भी है। इसी नदी के किनारे असम में फैली हैं हजारों आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, बील, झीलें और दलदली धरती। ये प्रकृति के अपने जल भंडार हैं। आर्द्र भूमियों के पुनर्स्थापन एवं संरक्षण हेतु माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाढ़ मुक्त असम के उद्देश्य से एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रस्तावित किया। गृह मंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को असम सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाया है। अक्टूबर 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के अंतर्गत रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ असम वेटलैंड्स योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी के 9 जिलों में 15 परियोजनाओं के माध्यम से कुल 24 आर्द्र भूमियों का विकास किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 692 करोड़ रुपए है। इस पहल से आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। मत्स्य पालन से लेकर पर्यटन तक रोजगार की नई राहें खुलेंगी। हर जिले में स्थानीय महिलाओं और युवाओं के साथ स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, जो अपनी अपनी आर्द्र भूमियों की रक्षा और देखरेख करेंगे। इन समूहों को बील सुरक्षा समिति कहा जाएगा। आर्द्र भूमियों के रखवाले। भारत सरकार की पहल और असम सरकार की मजबूत सोच के साथ आने वाले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त असम की दिशा में ये एक ठोस कदम है। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस पहल से न सिर्फ बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि खेत और घर सुरक्षित रहेंगे और आर्द्र भूमियां फिर से जीवंत होंगी। तब असम का कल आज से भी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा उज्जवल होगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमें प्रोत्साहित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, डिब्रूगढ़ वालों की आवाज को क्या होगा? हेमंत जी आपके यहां दूसरी राजधानी लेकर आए हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। आज यहां आसाम की दूसरी विधानसभा का शिलान्यास हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक दाएं बाएं सभी लोग उठाएं। फिर से आसाम में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत
माता की वंदे। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री और डिब्रूगढ़ के ही सांसद श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत देमारी जी, श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री केशव महंता जी, श्री पवित्र मार्गरेट जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री प्रशांत फुकन, यहां के ही विधायक और विद्युत मंत्री असम सरकार श्री प्रशांत फुकन जी, रामेश्वर तेली जी और हमारे संगठन के साथी डिब्रूगढ़ के जिला अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी जी, तिनसुकिया के अध्यक्ष कुशाकांत बोरा जी और असम के महासचिव श्री ऋतुपर्णा बरुआ जी। और आज इस खुशनुमा माहौल में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई रहे हैं। उपस्थित सभी मेरे डिब्रूगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आज चाय राजधानी डिब्रूगढ़ की जनता को बहुत बहुत मन से प्रणाम करने के लिए आया हूं। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है और यहीं के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों,
आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि आसाम का हर क्षेत्र इसकी आसाम पर मलकियत है। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का आसाम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान आसाम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत बिस्वा शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों के लिए हमारे युवाओं में एक उत्साह भरने का काम किया है। स्पर्धा चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, एशिया की हो, हमारे युवा आज खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने की सुविधा, ट्रेनिंग की आधुनिक व्यवस्था, पारदर्शी चयन और खिलाड़ियों को सरकार से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, खेल पनप नहीं पाता है। और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। मित्रों, अब 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, जैसा मैंने आगे बताया, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी डिब्रूगढ़ में बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली है। और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का। फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, यहां पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी करा है। हेमंत जी ने मुझे नीचे इसका मानचित्र बताया। मैं और सर्वानंद जी थे। मैंने हेमंत जी के कहा है कि पशुओं के साथ साथ पक्षियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था यहां पर कर दीजिए, जिससे व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। मित्रों, साइंटिफिक रिसोर्स और जेनेटिक डिजीज की स्टडी यहां पर होकर ये विश्व में अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। और आज मेरे मन का जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, आसाम की नदियां
हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले हमने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे। मैं आज डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का जगह भी हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ का स्थान चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर्वानंद जी यहां बैठे हैं, वो सांसद है डिब्रूगढ़ से और अभी अभी डिब्रूगढ़ वालों को मालूम नहीं है शायद, मोदी जी ने डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। थोड़े दिनों पहले 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है। भाई, अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे? चलो मैं ही बता देता हूं। यहां के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार आसाम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ये मोदी जी ने जो कमाल किया है, इससे पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने
ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आएगा। जब टाटा वाले पूछते हैं कि कैंसर के लिए अस्पतालों का जाला बुनना है, कहां बुने, तो दिल्ली से मार्गदर्शन होता है कि हमारे आसाम में करिए, यहां से किसी को दिल्ली न आना पड़े। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए, 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है। एक जमाने में यहां कर्फ्यू, बम धमाके, गोलियों की आवाज थी, आज भूपेन दा का संगीत यहां से पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और आज तक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की सूद नहीं दी, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां तक कांग्रेस के ही नेता, महान भारत माता के सपूत गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी कभी भारत रत्न, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने यहां शांति, सुशासन, विकास और एक प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की नई संस्कृति का विकास किया है। और 2021 में डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो आसाम विरोधी था और भारत में आसाम, दुनिया में आसाम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये अंतर है दोनों के बीच। मित्रों, चाय बागान का क्षेत्र है, हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के समय से संथाल, मुंडा, कोल, भील, बंगाली, ये सारे श्रमिक यहां पर बसे थे, मगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारी सरकार ने 2025 में लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पारित कर 825 चाय बागानों के 3,33,000 परिवार, मतलब लगभग 20 लाख लोगों को भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। सदियों से लोग भूमि की मलकियत के लिए संघर्ष करते थे। पहले कांग्रेस के खिलाफ किया,
इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसी ने सूद नहीं ली। 25 में भाजपा आसाम सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर ये अमेंडमेंट कर चाय बागान वालों को मालिक बनाने का काम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। मित्रों, आज पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला, भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। आज हमारे मोदी जी यूएन के मंच पर असम का गमछा लेकर जाते हैं और यूएन में भाषण में शंकर देव और माधव देव का नाम देकर वो विश्व में हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। लसित बरफुकन को आज मोदी जी और असम सरकार ने पूरे देश की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन के वीर जीवनी को अलग अलग 23 भाषाओं में अनुवादित कर वहां तक पहुंचाने का काम किया है। और 400वीं जयंती हेमंत जी यहां मनाना चाहते थे। मोदी जी ने कहा असम में तो मनाइए ही मनाइए, आप राजधानी के विज्ञान भवन में बनाइए, मैं आऊंगा और लसित बरफुकन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। हमारे आसाम में मुझे बड़ी गंभीरता से बताइए, डिब्रूगढ़ वालों को इतना परेशानी नहीं है, मगर आसाम की परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों,
ये घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक प्रकार से आज से आप आसाम की दूसरी राजधानी बने हो। मुझे जरा मन से बताना, अगले चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ भाजपा को चुनकर लाओगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जरा जोर से बोलिए, भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रभु श्री राम का नारा भी लगाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। महोदय, आपके अमूल्य भाषण के लिए हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं।